Hi dear, welcome everybody. Welcome everybody to IIT JEE Mathematics class of IIT and Guide. आज हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे सर्किल के ऊपर. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द थ्योरी पार्ट एंड वी हैव डन फ्यू प्रॉब्लम्स एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद फ्यू मोर प्रॉब्लम्स. थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स कराएंगे जो अच्छी होंगी. और दे आर गुड. दे आर मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर एज फार एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई. छोटी प्रॉब्लम होंगी, इजी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे और उसको जो है बाद में आप एडवांस के लिए यूज कर सकते हैं. तो बेसिक चीजें हैं, कोई भी टफ नहीं, बट इजी एंड गुड. दूसरी चीज, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ. Myself, Irfan Khan. I have done BTech from IIT Kanpur. Since last 27 years, I am taking IIT JEE classes and I have through so many ranks. And, and you can be also one of them. Huh? Make your efforts. Try to learn each and everything. Focus on each and every concept that I tell you. Get them remembered. Do practice. That is the only way to get score well in JEE. And I'm talking about the institute. We have the institute IIT and Guide. We take online classes. इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं. 1-to-1 बैच होता है. इंडिविजुअल आपके डाउट सॉल्व हो सकते हैं. दूसरा, वी हैव बैचेस फॉर द क्लास 11, क्लास 12 पास आउट. वी प्रोवाइड सो मेनी डाउट सेशंस. ओके, इंडिविजुअल डाउट आपके सॉल्व हो सकते हैं. And we have many plans for class 11, class 12. We are the light plan, premium plan, super premium plans हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी प्लान है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. And you can talk to the customer care. I will not go into much details and we are going to start the class now. क्लास अब स्टार्ट करते हैं. And we have many test series. We take regular test. We check their copies. We tell you about your performance. सब चीजें आपको मिल जाती हैं. So let's move to the topic here. The first question that we have, the coordinates of the middle point of the chord cut off by this line 2x minus 5y plus 18 is equal to 0 by the circle this r. Okay, this is a question we have. Okay, what we are given, there is a line. Just I'm solving. What we are given, there is a line L. I'm just writing. Its equation is 2x minus 5y plus 18 is equal to 0. Plus 18 is equal to 0. And we are given a circle. एक सर्किल भी दे रखा है. That is x square plus y square minus 6x plus 2y minus 54 is equal to 0. Okay. We are given a line. We are given a circle. ठीक है. What he has said is that coordinates of the midpoint of the chord. Chord होगी, उसका midpoint का coordinates निकालना है. And we are given a line and a circle. We are given a circle here. We are given a line. Its equation also he has given, that is 2x minus 5y. 2x minus 5y plus 18 is equal to 0. And we have the circle s is equal to 0. ठीक है. This chord intersecting the circle at the point A and B. A और B दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है. There is a midpoint M. यहाँ पे इसका एक midpoint M होगा. We need to find the coordinates of the midpoint M. इसका midpoint का coordinates निकालना है. It's very easy. I will take the coordinates of the point to be x1, y1. x1, y1. अब इसका निकालना है. अब ज्योमेट्री यूज कर लेंगे. अगर ए बी कॉर्ड है, एम इसका मिड पॉइंट है, तो सेंटर अगर सर्किल का यहाँ पे कहीं पे सी होगा और सी से एम को ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा. तो m1 m2 -1 लगा देंगे. पहला कॉन्सेप्ट. सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स यहीं से लिख दे रहे हैं. माइनस डी माइनस एफ होते हैं, तो वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी और द सेंटर. माइनस डी लिखेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस एफ लिखेंगे तो -1 आ जाएगा. तो आई कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन सी एम. And slope of the chord they have given. Slope of the chord line की इक्वेशन दे रखी थी, y is equal to mx plus c. तो from here we can write the slope of the line AB or slope of the AB, जो भी आप वर्ड यूज कर ले. I am writing here. If you write y is equal to mx plus c from 5y को राइट में ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, 2/5 आ जाएगा. So I am getting the slope of the line AB to be 5/5, 2/5. Now I'm applying m1 m2 -1. m1 m2 -1 लगा देंगे and we will proceed, right? Now
I'm just showing the formula and you can understand M1, M2, that is slope of the line CM. And M2, that is the slope of the line AB, is -1. M1, M2, -1, ये हमने formula लिख दिया. So that is 2 by 5. Multiplied by the slope of the line AB, line slope AB के तो मैंने लिख दिया, CM का लिख रहा हूँ. Y2 minus Y1 upon X2 minus X1, we have the formula that gives me Y1 plus 1 divided by X1 minus 3 is equal to -1. ये ऐसे आ जाएगा. Now I will cross multiply, I will transfer the equation. तो उधर जाएगा तो 5x1 -1 बनेगा, ट्रांसफर कर देंगे तो 5x1 आ जाएगा. After that I will get 2y1. Writing on the right side में लिख रहे हैं, अभी इक्वेशन सॉल्व कराएंगे. So I am getting 15 minus 2, that is 13. This is my first equation. Okay, I have got one equation into x1 y1. x1 y1 में एक इक्वेशन आ गई है, and we are having two unknowns. एक इक्वेशन मुझे और चाहिए होगी. अब एक इक्वेशन और चाहिए तो दूसरी बात ये है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, the point x1 y1 lies on the given line. Point x1 y1 जो होता है लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, so it will satisfy the equation of the line that I am writing. So x1 y1 lies on the given line. x1 y1 lies on the given line. So it will satisfy the equation of the line. So I am replacing x with x1. यहाँ पे x1 लिख देंगे x की जगह. So I am getting 2x1 minus of the 5y1. That will give me -18. राइट में माइनस करके लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से. यही मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में करा दिया था. इक्वल टू -18. ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दिया. दैट इज 1 बेसिकली. ओके, 2. दिस इज द 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ आई कैन सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे. आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स x1 y1, है ना. सो आई एम सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. इसको सॉल्व करेंगे. सो व्हाट वी आर गेटिंग, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड करें. 25 + 4 हमारे पास 49 आ जाएगा. एंड 13 × 5 65. 65 minus 36, that is 9 and 39. No, 29. सॉल्व कर रहे हैं. आई एम गेटिंग x1 to be 1. x1 की वैल्यू 1 आ रही है, और x1 की वैल्यू 1 अगर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट y1 to be 4. अभी चेक कर लेता हूं. 5x1 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, +8 30 सेटिस्फाई हो गई. 2x1 का अंदर 2 आ जाएगा, -20. 2 - 20 -8, दैट इज करेक्ट. सो आई गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M जो x1 y1 थे, उसकी वैल्यू 1,4 आ गई. दैट इज द सिंपल क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया. बट हमने इसके अंदर ज्योमेट्री यूज कर ली है ना, कि पॉइंट M जो होगा वो मिड पॉइंट जब होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा. ये कॉन्सेप्ट यूज कर ले. M1 M2 -1 निकाल लिया. दूसरी चीज, पॉइंट x1 y1 है, लाइन के ऊपर है, वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो आई हैव मेड 2 इक्वेशन. 2 इक्वेशन बना ली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया. आई गॉट द आंसर. ये छोटी सी चीज है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 सर्कल्स हैव द सेम रेडियस स्मॉल a having respectively center 2, 3 and 5, 6 cuts orthogonally. मेरे पास 2 सर्किल है, दोनों का रेडियस उसने a दे रखा है. एक का सेंटर 2, 3 है और दूसरे का सेंटर 5, 6 है. एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली. दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देन ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द ए, और रेडियस की वैल्यू पूछी है. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. सीधा सीधा एक फिगर बना दिया. ये एक सर्किल आ जाएगा, इसका सेंटर हमारे पास C1 है. इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 दे दिए इसने. हाँ, ये थ्योरी में हमने बता रखा है. इसको हम ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर्मूला 2G1 G2 + 2 F1 F2 = C1 + C2 होता है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं. उस केस में जब सर्किल की इक्वेशन दे रखी हो या फिर सर्किल की इक्वेशन निकाल ले. तो सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो सर्किल की इक्वेशन निकल जाएगी. बट उसकी हमें जरूरत नहीं है. आई हैव टोल्ड यू वन मोर मेथड वी कैन डू विद द ज्योमेट्री. आई हैव टोल्ड यू एक कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करने जा रहा हूं. दूसरा सर्किल है, उसका भी रेडियस यही दे रखा है. हाउएवर दे कैन गिव द डिफरेंट सर्किल है. रेडियस दूसरा दिया जा सकता था, बट एनीवे नो प्रॉब्लम. सेंटर C2 है, उसके कोऑर्डिनेट्स 5, 6 दे रखे हैं.
एंड वी आर गिवन बोथ द सर्किल आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। अगर दोनों सर्किल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो हमेशा नहीं होता, लेकिन जब ऑर्थोगोनली कट करेंगे तो सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, दोनों को ज्वाइन कर दिए, फिर आई विल गेट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसके अंदर पाइथागोरस यूज कर लेंगे। PC1 रेडियस पहले सर्किल की जो उसने स्मॉल ए कहा था, PC2 भी रेडियस दूसरे सर्किल को जिसने स्मॉल ए कहा था। सो आई कैन यूज द पाइथागोरस। आई कैन से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू C1 C2 स्क्वायर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस C1 C2 पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं, बल्कि स्क्वायर करके कर ले रहे हैं, C1 C2 स्क्वायर दैट आई कैन से 5 minus 2 that is 3 square plus 6 minus 3 that is again 3 square। तो ये हमारे पास 18 बन गया। एनीवे नाउ दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। वो हमेशा नहीं होगा, हमेशा 90 डिग्री नहीं बनेगा। सिंस इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, सिंस इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, then I can write a square plus a square, पाइथागोरस लगा रहा हूं, a square plus a square that is C1 C2 square that is 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। 2a स्क्वायर की वैल्यू नहीं कट जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी। आई कैन टेक स्क्वायर रूट, द वैल्यू ऑफ a आई एम गोइंग टू गेट टू बी 3। तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। a की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, हालांकि प्लस भी आएगा माइनस साइन भी आएगा, लेकिन इसने कहा था ना रेडियस a है, रेडियस हैज टू बी पॉजिटिव। ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ a, ही हैज द रेडियस। तो दैट इज इक्वल टू प्लस 3। वी कैन नॉट राइट माइनस 3। एक चीज रिकॉल करा दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री एंगल दे रखा था, ऑर्थोगोनल दे दिया था। आई हैव यूज्ड द ज्योमेट्री। अदरवाइज ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दें, जस्ट आई एम रिकॉलिंग। इन केस यहाँ पे थीटा एंगल आ जाता है, ये 90 डिग्री नहीं है, तो वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल चैप्टर होता है, एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। वी हैव ए फॉर्मूला cos थीटा दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ पे R1 R2 दोनों बराबर है, बट आई एम राइटिंग द फॉर्मूला दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ द थर्ड साइड दैट इज C1 C2, इसको हम D करके लिख दे रहे हैं, माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R1 R2। अगर डिफरेंट प्रॉब्लम होगी, अगर कोई डिफरेंट प्रॉब्लम होगी जहां पे रेडियस अलग अलग होंगे, R1 R2 होंगे, एंगल थीटा 90 डिग्री ना हो के 45 डिग्री या 30 डिग्री, वट एवर द वी हैव, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये cos 30 बन जाएगा। R1 R2 डिफरेंट होंगे, D सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड we can get the value of the radius R1 or R2 whatever they ask। जो भी चीज पूछी जाएगी निकल जाएगी। But anyway, let's move to the next question। next question पे जा रहा हूं। This is a very good problem। this is JEE problem। JEE की प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। Okay, the circle S1 that is x square plus y square equal to 16। ये सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 6 है। So x square plus y square is equal to 16 he has said। So I'm just writing the coordinates of the center, there is 0 0 and its radius I'm just writing, I may need it, इसकी वैल्यू 4 आ गई। वैसे भी सर्किल की इक्वेशन होती है तो माइंड में थोड़ा सा रख लेना चाहिए कि सेंटर और रेडियस ये है, तो उसकी जरूरत पड़ भी सकती है ना। कट्स अनदर सर्किल एस और द रेडियस 5। अब मेरे पास एक दूसरा एक सर्किल दे रखा था, उसका रेडियस इससे कैपिटल R में ले रहा हूं, दैट इज 5। इट इज गिवन इन सच ए मैनर दैट द कॉमन कॉर्ड इज ऑफ द मैक्सिमम लेंथ। जो कॉमन कॉर्ड बनेगी वो मैक्सिमम लेंथ की आएगी। अब दूसरे सर्किल की क्वेश्चन नहीं दी है, उसका रेडियस दिया, उसका सेंटर क्या है उसने बताया नहीं है। एंड द कॉमन कॉर्ड हैज द स्लोप इक्वल टू द 3/4। और जो कॉमन कॉर्ड है उसकी क्वेश्चन 3/4 दे रखी है। ही इज आस्किंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल S2। सर्किल S2 के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री से करेंगे तो बेटर रहेगा, कोऑर्डिनेट वगैरह यूज करने में परेशानी भी आ जाएगी, नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी पहले भी बता रखा है मैंने कि सर्किल की क्वेश्चन में ज्योमेट्री वगैरह यूज करके अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो कर लेनी चाहिए। दे आर शॉर्ट, दे आर इजी। समटाइम्स दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट आल्सो, दैट आल्सो वी कैन से।
वो जेई के पॉइंट ऑफ से भी करा रहा हूँ ना। जेई में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ज्योमेट्री वगैरह से क्वेश्चन होने के चांस 50% रहते हैं, जो छोटे क्वेश्चन आएंगे मेंस में। एडवांस में भी ऐसा हो सकता है कि छोटे से पार्ट में कहीं ज्योमेट्री निकाल के कुछ रिजल्ट निकालना पड़ जाए। तो वी शुड हैव ए गुड कमांड ओवर ज्योमेट्री। ठीक है, एक सर्किल मेरे पास S1 दे रखा है, इसका रेडियस 4 है। पहली चीज, इसका सेंटर यहां होगा, इसका रेडियस 4 है, माइंड में रखिए। आफ्टर दैट ही इज सेइंग अनदर सर्किल हैज द रेडियस 5, उसकी रेडियस ज्यादा है, वो बड़ा सर्किल होगा। इन सच ए मैनर दैट द कॉमन कॉर्ड इज द मैक्सिमम लेंथ। अब जब दो सर्किल कटेंगे, जब दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे, तो वी विल गेट ए कॉर्ड। इस कॉर्ड की लेंथ हमारे पास अलग अलग आएगी। बट ही हैज सेड कॉमन कॉर्ड इज द मैक्सिमम लेंथ। कॉमन कॉर्ड जो है मैक्सिमम लेंथ की है, तो इसका मतलब कॉमन कॉर्ड जो होगी डायमीटर होगी छोटे वाले सर्किल का, बड़े वाले का नहीं हो सकता है ना। तो कॉमन कॉर्ड जो भी होगा वो हमारे पास बड़े वाले सर्किल का डायमीटर होगा। सो आई एम ड्राइंग द फिगर, दिस वन आई टोल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन है। कॉमन कॉर्ड हमारे पास मैक्सिमम लेंथ की चाहिए। तो बेसिकली ही हैज सेड द सर्किल S2 इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द डायमीटर। कोई डायमीटर होगा उसके एंड से पास कर रहा है, तो ये सर्किल मेरे पास ऐसे हो जाएगा और इसका रेडियस 5 है। ओके, इसका सेंटर जो निकलेगा वो मेरे पास यहां कहीं आ जाएगा। आई एम जस्ट ड्राइंग, इस सेंटर विल बी समवेयर हियर। पहले वाले सर्किल का सेंटर मैंने C लिखा था, उसको मैं C लिख दे रहा हूं, 0 0 भी लिख दे रहा हूं। आई एम कंप्लीटिंग द फिगर कंप्लीट कर दे रहा हूं। पहले वाले सर्किल का सेंटर 0 0 आ गया, पहली चीज इसे दे रखी है। दूसरे वाले सर्किल का सेंटर हम आप C2 करके लिख दे रहे हैं, या जो भी है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x1, y1 मान लिए। दैट वी नीड टू फाइंड, हाँ उसको मुझे फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट ही हैज गिवन, दिस कॉर्ड हैज द स्लोप, इसको भी मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। दिस कॉर्ड हैज द स्लोप दैट इज 3/4। ये पॉइंट A लिख दिया, ये पॉइंट B लिख दिया, दैट्स ऑल। अब दूसरी चीज तो ये है कि हमें ज्योमेट्री तो यूज करनी पड़ेगी, है ना। ज्योमेट्री यूज करके आराम से हो जाएगा। पहले वाले सर्किल का रेडियस 4 दिया है, अगर C से A तक की डिस्टेंस यूज करेंगे तो ये 4 आ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे वाले सर्किल के सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, दूसरे वाले सर्किल का रेडियस आ जाएगा और वो इंटरसेक्ट करेगा। जरूरी नहीं टैंजेंट मत बनाइए, और इसकी वैल्यू उसने 5 दे रखी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, C जो होगा वो कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है। AB डायमीटर भी है, मिड पॉइंट है, C1 है। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB, और यह परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ C1 C2। पाइथागोरस यूज करके आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 C2, that is equal to so I am just writing C1 C2, that will be equal to 5 square minus 4 square, अंडर रूट करा देंगे तो I am going to get 3। I am making an equation है, स्क्वायर करके लिख दे रहा हूं। C1 C2 लिखेंगे तो x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आई एम गेटिंग इट टू बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। आई हैव गॉट दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज x1 y1 मेरे पास दो अननोन है। आई हैव गॉट वन इक्वेशन, आई नीड वन मोर इक्वेशन, एक इक्वेशन और चाहिए होगी। देन आई विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर C2 व्हिच आर x1 y1। दूसरी इक्वेशन आराम से बनेगी, अभी भी मैंने किया था, और अक्सर ये चीज यूज ही होती है। m1 m2 -1 बन जाएगा। ओके, स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB जिसको हमने यूज नहीं करा है, दे रखा है 3/4, और स्लोप ऑफ द लाइन C1 C2 हैज टू बी -1। सो आई एम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। आई विल मेक अनदर इक्वेशन। नाउ आई कैन राइट slope of the chord AB that he has given multiplied by the slope of the line C1 C2 is -1। अब इसको लिख दे रहा हूं। स्लोप AB का 3/4 इसने दे ही रखा है, एंड स्लोप ऑफ द C1 C2 निकालेंगे, दैट विल गिव मी y1 डिवाइडेड बाय x1, दैट इज -1। So I am getting 3y1 is equal to 4x1. So basically I am getting 3y1 is equal to -4 of the x1, that is my second equation। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेने। इक्वेशन नंबर 1 and 2 I am going to solve। इक्वेशन नंबर 1 and 2 I am solving। अच्छा,
तो y1 की जगह माइनस में 4x1/3 रख देंगे, सो आई एम गेटिंग x1 स्क्वायर। ओके, आई एम शोइंग है, शो कर दे रहा हूं, जस्ट डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर कराएंगे, आई विल गेट 16/9 ऑफ x1 स्क्वायर, दैट ही हैज गिवन 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 25 बन जाएगा, 9 9 से 81 बनेगा, अंडर रूट ले लेंगे। सो आई एम गोइंग टू गेट x1 के लिए 9/5 आ जाएगी और प्लस माइनस आ जाएगी, और माइनस में 9/5 आई विल गेट दीज टू वैल्यूज। या तो वो 9/5 आएगी या माइनस में 9/5 आएगी। आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ द x1, दैट मीन्स आई कैन हैव टू सर्किल्स। हमारे पास दो सर्किल आ सकते हैं, वही बता दूंगा। ठीक है, अभी बाद में जब x1 की जगह 9/5 रख देंगे, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द y1, x1 की जगह 9/5 रखेंगे तो आई विल गेट माइनस ऑफ द 12/5। y1 की वैल्यू माइनस 12/5 आ जाएगी, और माइनस वाला रख देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 12/5, ऐसे आ जाएंगे, राइट। सो आई हैव गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर C2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, या सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है, आई हैव गॉट द आंसर दैट आई एम राइटिंग C2 कि x कोऑर्डिनेट जब 9/5 आएंगे तो y वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस में 12/5 बन जाएंगे। ये हो सकता है, और वी कैन हैव वन मोर सर्किल, दूसरा सर्किल भी हो सकता है, और उस टाइम पे हमारे पास सर्किल जो C2 आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स, अगर x कोऑर्डिनेट माइनस 9/5 आएंगे तो y वाले मेरे पास 12/5 आ जाएंगे। तो आई हैव गॉट टू आंसर, आई मे हैव टू सर्किल्स। अब उसको एक्सप्लेन कर दे रहे, बता दे रहे हैं। अभी फिगर में मैंने सर्किल C2 को यहां पे ड्रॉ कर दिया था, ऊपर की साइड में या राइट में ड्रॉ कर दिया था AB के। आई मे हैव ए सिचुएशन कि हमारे पास सर्किल ऐसे बन जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी, एकदम एक जैसा बनेगा, तो आई कैन हैव ए सर्किल समथिंग लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है। तो सर्किल का सेंटर C2 यहां पे भी आ सकता है, तो या तो C2 उस साइड होगा या इस साइड आ जाएगा। अब कैसा भी हो, सिमेट्री रहेगी, तो अगर C2 यहां पे आएगा तो दूसरा वाला सेंटर अगर यहां निकलेगा तो इसका और इसका मिड पॉइंट जो निकलेगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल या ओरिजिन आना चाहिए। C2 ये वाला निकालेंगे या ये निकालेंगे, दोनों सर्किल होंगे, दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास 0 0 आना चाहिए। और ध्यान से देखिए, तो x1 + x2/2 0 0 आ जाएगा, और अगर हमने C2 वाला ये वाला ले लिया तब भी y कोऑर्डिनेट भी 0 आ जाएंगे। सो बेसिकली आई कैन हैव टू सर्किल्स, सेंटर हमारे पास 9/5 माइनस 12/5 या फिर माइनस 9/5 12/5, दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो हमारे पास ब्लू वाला सर्किल जो है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। एनीवे, तो दिस इज जेई क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स मूव। अब उसमें ये ना वो दे रखा था कि कॉर्ड AB ऑफ द मैक्सिमम लेंथ, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा या कैलकुलस यूज करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालना, ज्योमेट्री यूज करनी है। कॉर्ड मैक्सिमम होगी, दैट मींस इट इज अ डायमीटर है, इनडायरेक्टली इसने ये कह रखा था। नाउ कम टू दिस पॉइंट, दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो जेई क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पहली बात तो सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द दिस, एक सर्किल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने, और सर्किल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। पहली बात तो ये बार बार मैं ये कहता हूं कि सर्किल के क्वेश्चन है तो ज्योमेट्री वगैरह से हो सकते हैं तो कर लेना चाहिए, दैट इज कन्वीनियंट एंड इजी। सबसे पहले अगर ज्योमेट्री यूज करेंगे तो फिगर को एक्यूरेट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्यूरेट, रैंडमली कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्योमेट्री यूज करनी है। दूसरी बात ये, सर्किल इज पासिंग टू द पॉइंट 1√3, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट √3 है। दूसरा पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट तो वही है लेकिन y कोऑर्डिनेट -√3 हो गए, इसका ध्यान देना है, तो y कोऑर्डिनेट नीचे की साइड आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो आएगा उसके x कोऑर्डिनेट तो 3 हो जाएंगे लेकिन y कोऑर्डिनेट -√3 रहेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर एक्यूरेटली। We are given a point, x coordinate is 1, y coordinate is √3. I am having a point A. ये point A आएगा, इसके x coordinate 1 आ गए और y coordinate √3, या ये जो point आएगा इसके 1,0 आप चाहो तो लिख दो। We are the point B, x coordinate is 1, y coordinate is -√3, तो it will go down side. ये point B आ जाएगा और x coordinate 1 रहेंगे, y coordinate माइनस में √3 रहेंगे। ठीक,
वी आर गिवन ए थर्ड पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट है जिसके एक्स कोऑर्डिनेट 3 लेकिन वाई कोऑर्डिनेट -√3, वाई कोऑर्डिनेट -√3, तो वाई वाला ये वाला पॉइंट जो आएगा वो यहां कहीं आएगा, पॉइंट सी। एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ जाएंगे, तो कुल मिला के ये 3,0 कोऑर्डिनेट बन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 3 नो, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -√3, ऐसे दे रखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगी। तो आई हैव गॉट ए ट्रायंगल ए बी सी, ये चीज आ गई। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहली बात तो ये है, जो भी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ए बी तो कॉर्ड आएगी, और ये 90 डिग्री है, यानी कि एसी डायमीटर होगा, पहली चीज। और वैसे भी जब ए बी कॉर्ड आएगी तो उसका मिड पॉइंट के ऊपर सर्किल का सेंटर लाई करेगा, तो मिड पॉइंट हमारे पास यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जो भी हो उसके वाई कोऑर्डिनेट जरूर 0 आएंगे। खैर एनीवे, आई एम ड्रॉइंग द फिगर और कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई एम हैविंग ए सर्किल समथिंग लाइक दिस, ये सर्किल आ रहा है जिसके अंदर ए बी जो होगा वो डायमीटर होगा। ओके, दिस इज द पॉइंट सी, ऐसे बन रहा है। जब एसी डायमीटर होगा तो उसका मिड पॉइंट जो होगा सर्किल का सेंटर होगा, सीधी सी बात है। तो आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम इज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, इज मिड पॉइंट, और आई कैन से सेंटर ऑफ ए बी इज द डायमीटर ए बी। अब डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज सेंटर। सो आई कैन से द सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, आई कैन राइट x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 3 + 1, x कोऑर्डिनेट 3 + 1/2 आ जाएंगे, और y कोऑर्डिनेट √3 और -√3 दिए हैं तो वो 0 आ जाएंगे। क्वेश्चन गलत नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने 3 - √5 दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन तो सही दिया जाएगा, √3 - √3 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली सेंटर एम के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए 4/2 यानी कि 2,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास 2 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गए, तो क्वेश्चन सही होगा तो ऑटोमेटिक ही वाई कोऑर्डिनेट 0 आएंगे। वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट एम, इट्स कोऑर्डिनेट्स आई हैव गॉट 2,0, दैट इज माय आंसर। ज्योमेट्री से प्रॉब्लम होगी, अगर आप सर्किल के इक्वेशन लिखेंगे और ये सब चीजें करेंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स कंफ्यूजिंग। और वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है जब लाइन हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाती है, यानी कि स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है, या स्लोप 0 हो जाता है, तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो जाती है थोड़ी सी। कुछ फॉर्मूले जो लोग यू होते हैं ना, m1 - m2 / 1 + m1 m2 या m1 m2 -1, ये सब नहीं लगा पाएंगे अगर वन ऑफ द स्लोप इज इनफाइनाइट, या हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा या लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूले नहीं लग पाते हैं, उस टाइम पे हमें ज्योमेट्री यूज करना पड़ता है। दैट आई एम टेलिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन। अभी हमारा जो फोकस है बस इसी बेस पे है कि छोटे क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट्स हो। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे तरीके, छोटी चीजें समझ जाइए और उनको फिर जो है हम आगे यूज कर पाएंगे। तो वी शुड हैव ए गुड कमांड, बहुत अच्छा कमांड चाहिए होता है इस तरह की चीजों के ऊपर। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन लिख दे रहा हूं। वी आर गिवन x² + y² -2x - 2y -2 to be 0. We need to find the locus of the midpoint of the chords which makes 120 degree at the center. उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो हमारे पास 120 डिग्री एट द सेंटर बनाती है। क्वेश्चन तो ये है। सो इसको भी हम ज्योमेट्री से कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। वी शुड हैव ए आइडिया। अभी ज्योमेट्री यूज करने वाले तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g -f होते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -g -f, तो आई एम गोइंग टू गेट 1,1। और सर्किल की रेडियस निकाल रहे हैं, g² + f² - c होती है, तो दैट इज g² 1 + f² 1 और -(+2), तो रेडियस की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ रही है। वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन, देयर इज ए सर्किल, एक सर्किल है जिसका सेंटर 1,1 है। ठीक है, ड्रॉ कर दूं। ये सर्किल है, इसका सेंटर इसने 1,1 दे दिया।
दूसरी बात, we need to find the locus of the midpoint of the chords which are making 120 degree. I am drawing the figure. पार्टिकुलर एक मैंने कॉर्ड खींच दी, इसको मैंने ए बी कर दिया, और ये जो ए बी कॉर्ड होगी सेंटर के ऊपर 120 डिग्री बना रही है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी. वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड और लोकस ऑफ द पॉइंट एम. आई एम टेकिंग इट टू बी x1 y1. इसको मैंने x1 y1 ले लिया. ठीक है, कॉर्ड ए बी सेंटर पे 120 डिग्री बनाती है, तो हमने क्लास 8, 9, 10 में थ्योरम पढ़ रखी है, टोटल डिग्री, टोटल एंगल 120 डिग्री आएगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे. बट एनीवे, द रेडियस ऑफ द सर्किल ही हैज गिवन 2. ये सेंटर अगर मैंने ओ लिख दिया तो ये रेडियस की वैल्यू उसने 2 रखी है. ओ नहीं, मैंने सी लिखा तो सी कर दे रहा हूं, उसको सिंबल नहीं चेंज कर रहा हूं, इट इज सी. ठीक है, अब एक चीज है कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, इसको फिगर को हम 360 डिग्री रोटेट करा दे, तो उसके बाद में पॉइंट एम जो होगा वो हमारे पास एक सर्किल में रोटेट कर जाएगा, यानी कि लोकस जो सी का निकलेगा तो वो हमारे पास जो है सर्किल आ जाएगा. अब वैसे भी क्लास 8, 9, 10 की थ्योरम से भी करेंगे, तो अगर यहाँ पे 120 डिग्री बनेगा तो कॉर्ड जो भी होगी, ठीक है, वो बराबर डिस्टेंस पे रहेगी सेंटर से. कॉर्ड में भी हेयर, कॉर्ड में भी हेयर, कॉर्ड में भी हेयर. ओके, इसकी लेंथ जो भी रहेगा उसका मिड पॉइंट जो होगा सर्किल के ऊपर लाई कर जाएगा, और जो कॉर्ड होगी 120 डिग्री बनाएगी, वॉट एवर द कॉर्ड वी ड्रॉ. ज्योमेट्री से, कॉमन सेंस से, ठीक है, आई कैन से the locus of the point M will be a circle with center 1,1 and radius I will calculate cm with geometry. ठीक है, इतना काम कर लेंगे, that's all. So I'm writing a statement, locus of the point M is a circle, लेकिन उसका सेंटर हमारे पास 1,1 ही रहेगा. is a circle with center 1,1 with center 1,1 and radius that is cm. उसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, cm की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 ऑफ द cos 60. ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री से 2 cos of 60, cos of 60 हाफ होता है, तो 2 into half, that is 1. I have got the radius, I have got the center, so I can write the equation of the circle. Hence, equation of the circle, I can say, equation of the circle, I have formula x minus x1 whole square, x minus x1 की वैल्यू 1 whole square, plus y minus y1, y1 की वैल्यू भी 1 ही है, whole square, that is radius square, 1 square. We can leave the answer here, otherwise we can open the bracket, then we can write, हाँ ब्रैकेट खोल के दिया है, मैं भी वही कर दे रहा हूँ. x स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, y स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, माइनस में 2x आएगा, माइनस में 2y आ जाएगा, एक 1 आएगा, उधर से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 1 बच जाएगा, प्लस 1 टू बी 0. दैट इज माई आंसर एंड दैट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट है, वो मैच कर जाएगा इससे. नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल दिस एंड दिस. अब 2 सर्किल दे रखे, उसकी लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड हमें निकालनी है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास आल्सो, दिस टाइम अगेन इट इज रिपीटिंग. तो इसका एक मेथड होता है जो हमने पहले बता रखा है, आई एम गोइंग टू यूज दैट है. ठीक है, लेट मी राइट. हाँ, सर्किल की क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सर्किल की क्वेश्चन. आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ द फिगर, आई विल यूज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री से करेंगे, ज्योमेट्री से ही ज्यादा अच्छा रहता है. अब वो हमें चाहिए होता है, आइडिया चाहिए होता है कि कौन सी प्रॉब्लम ज्योमेट्री से होंगी, किसके अंदर ज्योमेट्री नहीं लगेगी. है, बट एनीवे, द सर्किल S1 आई एम हैविंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू बी 0. बट एनीवे, आई एम कैलकुलेटिंग सेंटर एंड रेडियस, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी. तो सेंटर C1 के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे -g -f कराएंगे, तो आई एम गोइंग टू गेट -2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो 0 आ गए. इस रेडियस आई एम राइटिंग, रेडियस भी हमारे पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c करा देंगे, तो 4 - 1 यानी कि 3 अंडर रूट, रेडियस √3 आ गई. सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ द अनदर सर्किल. दूसरे सर्किल की इक्वेशन लिख दे रहा हूं, S2.
we are having x square plus y square plus 4y minus 1 to be 0. This is the equation of the another circle that is given to us. I'm writing the coordinates of the center C2. इसके कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट आई एम गोइंग टू गेट -2, 0, -2, और इसका रेडियस निकालेंगे R2, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, एफ स्क्वायर के लिए 4 और माइनस से +1 आ जाएगा, यानी कि √5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सर्किल के जो रेडियस है, एक का -2 0 आया, दूसरे का 0, -2 आ गया। तो एक हम के सेंटर हमारे पास निगेटिव एक्सिस पे, दूसरे के निगेटिव वाई एक्सिस पे है। ठीक है, वो सिमेट्री है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट, इसकी कोई जरूरत नहीं। रेडियस अलग अलग आ रहे हैं, एक का √3 एक का √5 है, दोनों के रेडियस अलग अलग है। सो आई एम गोइंग बाय द नॉर्मल मेथड, एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, रफ फिगर बना दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। जरूरत नहीं है उस सब चीजों की। सो वी हैव ए सर्किल, ये S1 दे रखा है और इसके सेंटर इसने C1 है, उसकी वैल्यू -2, 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फिगर में लिख दिए, रेडियस दे रखा √3। वी हैव अनदर सर्किल, दूसरा सर्किल है, वो रेडियस ज्यादा है उसका, दे आर इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन गलत नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सर्किल C2 यहां पे होगा, इंटरसेक्ट ही ना करे, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें ज्यादा बॉदर भी नहीं करना है। तो सर्किल दूसरा वाला C2 आ जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट 0, -2 है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर देंगे एंड वी आर गिवन देयर इज ए कॉर्ड, एक कॉर्ड है जिसका हमें लेंथ निकालना है। तो वी आर हैविंग दिस कॉर्ड, दैट इज द कॉमन कॉर्ड या जो भी है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट A एंड B। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल है, तो ए बी कॉमन कॉर्ड आएगी, तो कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास यहां आएगा, वो लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 है। C1 C2 के मिड को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करेगा और 90 डिग्री होगा। M जो होगा मिड पॉइंट होगा ए बी का, लेकिन M मिड पॉइंट C1 और C2 का नहीं होगा। ठीक है, ए बी का कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर C1 और C2 का मिड पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है ना, एनीवे वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। एक काम करेंगे, AM निकाल देंगे, जब AM निकल जाएगा तो उसका डबल कर देंगे, आई विल गेट AB। AM वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक सर्किल का रेडियस दे रखा है C1, हम चाहे तो C2 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें C1 वाले को मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू √3। एक काम करें, जो पहले भी किया था, अगर कॉर्ड AB दैट इज द कॉमन कॉर्ड, इसकी इक्वेशन निकाल ले, तो सर्किल के सेंटर C1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या स्मॉल p या C1m जो भी कहेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यूजिंग पाइथागोरस आई विल कैलकुलेट AM। यही एक तरीका मेरे पास आसान रहेगा। हालांकि हम ये भी कर सकते हैं, हम वही ज्यादा आसान है, इजी भी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड वी हैव अ फॉर्मूला S1 - S2 टू बी 0। इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर AX1 + BY1 + C डिवाइड बाय √A² + B² होता है, वो यूज कर देंगे। है, सो आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला, दैट इज S1 - S2 टू बी 0। ये फॉर्मूला होता है, वो मैंने लिख दिया। आई एम राइटिंग S1 - S2, S1 दे रखा है, S2 इधर रखा है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x² वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। आई एम लेफ्ट विथ 4x - 4y, 4x - 4y, उसके बाद प्लस में 2 आ जाएगा, 2 भी 0। ये क्वेश्चन आ गए, इसको हम 2 से डिवाइड करा दे रहे हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग 2x - 2y + 1 टू बी 0। ये चीज आ गई। Now I can calculate the length of perpendicular from the point x1 y1 that is -2, 0 on the line that I have called P, जिसको हमने P कहा है। So I am calculating the value of the P की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, I am using the formula AX1, A की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू -2 है, तो -4 प्लस BY1,
बी की वैल्यू -2 है, y1 0, तो बेसिकली 0 बन जाएगा, प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, और ये मैग्नीट्यूड में आएगा, तो -4 प्लस 1 यानी कि 3 बन जाएगा। सो आई एम गेटिंग इट टू बी 3 डिवाइडेड बाई यहां पे 2√2 आ जाएगा पी की वैल्यू। ओके, नाउ आई कैन यूज द पाइथागोरस, आई कैन कैलकुलेट am। अब डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं। आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ द ए बी। वैल्यू ए बी जो निकलेगी 2 टाइम्स am निकलेगी, एंड वी कैन से दैट इज 2 टाइम्स am। पाइथागोरस यूज करेंगे तो रेडियस यानी कि 3 का स्क्वायर यहां पे शो कर दे रहा हूं, √3 का स्क्वायर कराएंगे 3 माइनस इसका स्क्वायर कराएंगे तो 9/8, 9/8। इसको सॉल्व कर दिया, तो आई एम गेटिंग इट टू बी 2, 8 on 3 24 minus 9 25, 24 minus 9 15, अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2√2, 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो आई एम गेटिंग इट्स वैल्यू टू बी अंडर रूट ऑफ 15/2। ऐसे करके आंसर लिखा मैंने भी, ऐसे लिख दिया। सो आई एम गेटिंग द आंसर दैट इज रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दिस इज द मेथड वी फॉलो। हाँ, यही फॉलो करते, पहले भी बताया था, यही यूज कराया था। हालांकि ये भी हो सकता है कि S1 S2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के लिए सबसेट करना पड़ेगा, यही चीज आ जाएगी, यही क्वेश्चन आ जाएगी। फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में रख दिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x + 1/2, यहां पर रख दीजिए, पहली इक्वेशन में या दूसरी में। यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, यानी कि वहां पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे, पॉइंट ए के और पॉइंट बी के x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर x कोऑर्डिनेट इसी इक्वेशन में रख दीजिए, y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिए, बट दैट इज गोइंग टू बी लेंथी है, वो लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर सर्किल की जगह मेरे पास एक इक्वेशन पैराबोला की दी होती, ठीक है, और एक लाइन दे देते या एक पैराबोला एक सर्किल दे देते, कोई भी चीज दी होती, तो अगर सर्किल ना होकर पैराबोला या और कोई चीज होती, तब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ते और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना ही पड़ता, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन सर्किल है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री बनता है। ये सब चीजें पैराबोला में नहीं हो पाएंगी। बट एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Locus of the center of the circle which touches both the circle did this externally has the equation। ये क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज ऑल्सो जेई प्रॉब्लम, जेई की प्रॉब्लम है। दिस इज ए जेई प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। जस्ट गेट दिस रिमेंबर, इसको याद कर लीजिए। नॉट द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट, ओके, एंड आई कैन टेल यू अबाउट द लोकस, वेदर इट इज एलिप्स और हाइपरबोला, ऑल दोस थिंग्स। ये सारी चीजें बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, 2001 2002 के आसपास में पहली बार ये क्वेश्चन आया था इसी तरह से, लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था। इट वाज गिवन देयर आर 2 सर्किल, S1 = 0, S2 = 0, एंड they are not intersecting. We need to find the locus of the center of the circle with touching both the circle externally। तो वही चीज यहाँ पे हमने S1 और S2 की वैल्यू दे दी है और इक्वेशन पूछ ली है। ठीक है, हम जेई का क्वेश्चन करा रहे हैं, बाद में इसको करा देंगे। सो जस्ट रिमेंबर इट। हाँ, ये मैंने कहा था, इसको याद कर लीजिएगा। रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। 2 चीजें बता दूंगा, कभी शॉर्टकट या कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो यूज कर लीजिएगा डायरेक्ट। ओके, आई एम चेंजिंग द प्रॉब्लम, जो जेई वाली प्रॉब्लम है वो बता दे रहा हूं। वी हैव, और लेट S1 = 0 and S2 = 0 are 2 circles, ये 2 सर्किल है, दे मे इंटरसेक्ट और दे मे नॉट इंटरसेक्ट। आई एम नॉट राइटिंग, वो लिख नहीं रहे हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल विच टचेस बोथ द सर्किल एक्सटर्नली। उसके बाद एक वर्जन और आ जाएगा, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल विच टचेस बोथ द सर्किल इंटरनली। दोनों क्वेश्चन बनेंगे, दोनों बता दूंगा। सेंटर ऑफ द सर्किल विच टचेस both circle
जो गिवन सर्किल है, मेरा मतलब उससे एक्सटर्नली, लेकिन एक्सटर्नली जब इंटरनली कर देंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, लोकस बदल जाएगा, वो भी बता दूंगा। इसीलिए मैंने कहा इसको याद कर लीजिएगा। नाउ आई एम ड्राइंग द फिगर, एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। वी आर नॉट गिवन द इक्वेशन ऑफ द S1 और S2। S1 S2 की इक्वेशन नहीं दे रही कि क्या सेंटर है क्या रेडियस है, मुझको नहीं मालूम है, बट एनीवे नो नीड टू वरी। We just want to find the locus of the center of the circle. That means in the option it was given, locus of the center of the circle is a hyperbola, it is an ellipse, it is a parabola, it is a circle. हाँ, बस ये ऑप्शन था। लोकस जो निकलेगा वो सर्किल आएगा या पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा या हाइपरबोला आएगा, दैट्स ऑल। वी हैव दिस सर्किल S1, वी हैव दिस सर्किल S2। ठीक है, एक का सेंटर मैंने C1 ले लिया, एक का सेंटर मैंने C2 ले लिया। ओके, अब दो सर्किल है, दो सर्किल को टच कर रहा है एक सर्किल एक्सटर्नली। अगर सर्किल इंटरसेक्ट कर जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन ड्रॉ द फिगर, आई कैन ड्रॉ द सर्किल विच इज टचिंग बोथ ऑफ देम एक्सटर्नली, बट एनीवे आई एम ड्रॉइंग ए सर्किल विच इज टचिंग बोथ ऑफ देम एक्सटर्नली। बड़ी सी फिगर बन रही है, बनने दीजिए। आई कैन हैव ए सर्किल, उसका सेंटर मेरे पास यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल, जिसको मैंने C लिख दिया है। और उसके बाद सर्किल मेरे पास ऐसे भी बन सकता है, सर्किल मेरे नीचे की साइड ही बन सकता है, तो उसका सेंटर नीचे बना लीजिएगा, बड़ा सा बना लीजिएगा, यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। और आई मे हैव ए सर्किल समथिंग लाइक दिस, बहुत सारी फिगर बन जाएंगी, बहुत सारे सर्किल आ जाएंगे जो दोनों को एक्सटर्नली टच करेगा। सेंटर इज समवेयर हियर, समटाइम्स हियर, समटाइम्स हियर, समटाइम्स हियर, लाइक दिस। तो लोकस जो भी निकलेगा वो एक पाथ आ जाएगा। वी नीड टू फाइंड इट्स इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि इतनी सारी फिगर हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताई है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, हमें जरूरत नहीं है, सब चीजों की करना नहीं चाहिए। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस। एक्सप्लेनेशन के बता दिया कि लोकस हमारे पास या जो पॉइंट C होगा वो चेंज कर रहा है। वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल, इनफाइनाइट सेंटर, बहुत सारे सर्किल आएंगे, बट एनीवे आई एम कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट पे आ रहा हूं। दिस पॉइंट इज C, ये पॉइंट C आ जाएगा, इसका लोकस निकालना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ज्योमेट्री से सॉल्व कर पाएंगे और कोई तरीका नहीं होगा। सर्किल को इससे C1 से ज्वाइन करेंगे, तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एक ही लाइन में होते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां या यहां नहीं हो पाएगा, दे शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन, पहली चीज। तो वही चीज यहां पे भी होगी, सेंटर टू सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज टू बी इन द सेम लाइन। ओके, आई एम टेकिंग द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्किल टू बी R1, इसको मैंने R1 ले लिया। आई एम टेकिंग द रेडियस ऑफ द अनदर सर्किल टू बी R2। आई एम टेकिंग द रेडियस ऑफ द सर्किल दैट वी नीड टू फाइंड द लोकस, कैपिटल R। ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है। एनीवे फ्रॉम द ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री के हिसाब से लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन में। C1 जो आएगा दैट वी कैन राइट कैपिटल R प्लस R1। वी कैन राइट C1 फ्रॉम द ज्योमेट्री, हाँ एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो आई कैन राइट दैट C1, ओके, C1 is equal to capital R plus R1, capital R plus R1. That is my equation number 1, पहली चीज। लेकिन कैपिटल आर जो होगा वो हमारे पास वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। कैपिटल आर कभी छोटा सर्किल बनेगा, कभी यहां बनेगा, तो अलग अलग सर्किल आएंगे, अलग अलग रेडियस होगा। कैपिटल आर इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट है। R1 की वैल्यू कांस्टेंट है, गिवन सर्किल है, उसका सेंटर और रेडियस दोनों फिक्स है। आई एम राइटिंग द सेम थिंग, I am writing the same thing. C2, that is also capital R plus R2. ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली थी, ये दूसरी थी। चलिए खैर कोई बात है। Now from these two equation I can get a relation. इन दोनों इक्वेशन से एक रिलेशन आ जाएगा। क्या आ रहा है वो मैं लिख के बता दे रहा हूं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आई एम सबस्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड को सबस्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। Then I can write C1 minus C2, that is equal to R1 minus R2. R1 minus R2 आ गया। अब एक चीज आ गई, R1 minus R2, R1 मुझको नोन है, गिवन सर्किल, उसका रेडियस हमको मालूम है। R2 दूसरा सर्किल, उसका रेडियस हमको मालूम है, तो R1 minus R2 इज ए कांस्टेंट। तो ये जो टर्म निकल के आई है दैट इज ए कांस्टेंट।
पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो टर्म लिखी है इसका मीनिंग क्या है ये बता रहा हूं। दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C1 जो होगा डिस्टेंस C का होगा पॉइंट C1 से, और C2 डिस्टेंस C का होगा फ्रॉम द पॉइंट C2। तो दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड इज डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, दैट इज डिफरेंस of distance of C from two fixed points C1 and C2। C1 C2 जो है फिक्स्ड पॉइंट है, वो कांस्टेंट है, वो सर्किल के सेंटर है। तो डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द C फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2। अब कोई भी पॉइंट जो होता है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिफरेंस कांस्टेंट आता है, देन इट्स लोकस इज हाइपरबोला, वो हाइपरबोला की डेफिनेशन आती है। सो दैट मीन्स आई हैव गॉट ए रिजल्ट दैट locus of the C is a hyperbola, locus of C is a hyperbola। पहली बात, ये हाइपरबोला की क्वेश्चन आएगी जो भी होगा। where C1 and C2 will be foci, पहली चीज, where C1 and C2 यानी कि सेंटर जो होंगे वो फोकाई होंगे, C2 आर फोकाई ऑफ हाइपरबोला, पहली चीज आ गई। दूसरी चीज, R1 माइनस R2 जो कांस्टेंट आता है, डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस जो होता है दैट इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस है। एंड R1 माइनस R2 जो निकलेगा, या R2 माइनस R1 जो बड़ा उसमें से जो भी चीज है, दैट इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी वैल्यू जो होगी वो ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होगी। दिस वन वी नीड टू कीप रिमेंबर। अब इसको याद कर लिएगा, ध्यान रखिएगा कि दो सर्किल है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं या टच भी कर जाए, इंटरसेक्ट भी कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच टचेस बोथ ऑफ देम एक्सटर्नली इज ए हाइपरबोला। इतना ध्यान रखिएगा बस, ये समथिंग इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन में भी यही था, दो सर्किल दे रखे थे, एक S1 था, एक S2 था। उसके एक सर्किल के सेंटर का लोकस से क्या था जो एक्सटर्नली टच करता है। आंसर में देखे तो हाइपरबोला की क्वेश्चन है, ठीक है। x माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो वो हाइपरबोला की क्वेश्चन है। सेंटर 0 0 नहीं आएंगे, सेंटर हाइपरबोला के कुछ भी हो सकते हैं, वो तो अलग अलग सर्किल होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होगी, उसके अकॉर्डिंग आएगा। दिस इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू कीप दिस रिमेंबर। है अच्छा रिजल्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एक थ्योरम और बता रहा हूं, उसको भी याद कर लीजिएगा, सिमिलर है, एकदम सिमिलर होगा, ओके, बट आई एम राइटिंग इन शॉर्ट है। थ्योरम 2 या जो भी है कॉन्सेप्ट है या जो भी है, इसको जो भी बोल दीजिए, थ्योरम 2 करके बोल दीजिए। लेट S1 इक्वल टू S2, लेट S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 आर द सर्किल, ये भी सर्किल है, आर सर्कल्स such that one circle is inside the another। अब एक सर्किल जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं या बाहर नहीं है, one circle is inside the another circle। Are the two circle such that S1 is equal to 0 lies inside S2। इंटरनली टच कर जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर वही रहेगा, lies inside S2 is equal to 0। S2 को बड़ा सर्किल मान ले रहे हैं, S1 को छोटा। Find the locus of the center of circle, then ऑप्शन में दे रहे हैं, then locus of the center of the circle, touching both circles, is, अब मेरे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन इज ए सर्किल, दूसरा ऑप्शन ए पैराबोला, तीसरा ऑप्शन एलिप्स, और चौथा ऑप्शन हाइपरबोला। ये चार ऑप्शन दे दिया, वन ऑफ देम इज करेक्ट। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। अब शॉर्ट में करा दे रहा हूं, उसी तरह से रहेगा जैसे अभी कराया था।
वही मेथड होगा, वही सब कुछ होगा, फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं होना। वी हैव ए सर्किल, बड़ा सा सर्किल बना दे रहा हूं, दैट आई एम टेकिंग S2 टू बी 0। इसका सेंटर मेरे पास यहां पे आ गया, जिसको मैंने C2 बोल दिया। आई हैव वन मोर सर्किल, एक सर्किल और है जो इसके अंदर है। अब वो आप इंटरनली टच करा देंगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम थिंग। उसका सेंटर मेरे पास यहाँ पे C1 आ गया। नाउ फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ सर्किल विद टचिंग बोथ ऑफ देम। ऐसा मैंने लिखा था, यहाँ पे ये नहीं लिखा था टचिंग बोथ ऑफ देम एक्सटर्नली और इंटरनली। तो एक सर्किल को तो एक्सटर्नली टच करेगा, दूसरे को इंटरनली टच करेगा। सो आई कैन हैव ए फिगर समथिंग लाइक दिस। आई कैन हैव फिगर समथिंग, इसको टच करा दीजिएगा, इंटरसेक्ट मत कराइएगा, टच करा लीजिएगा। और वी कैन हैव मेनी सर्किल्स, एक सर्किल ऐसे भी आ सकता है, एक सर्किल ऐसे भी आ सकता है, ये तो फिगर में अपने आप ही दिखाई पड़ जाएगा, दैट आई एम गोइंग टू गेट एन एलिप्स। या सर्किल ऐसे भी आ सकता है। तो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना, सेंटर यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट एन एलिप्स, एलिप्स तैयार हो जाएगा। तो इस आंसर इज एलिप्स। ये ज्योमेट्री में यहाँ पे दिखाई पड़ गया, पुराने वाले के अंदर हाइपरबोला नहीं दिखाई पड़ रहा है, परेशानी आ रही है ना। लेकिन अगर 4-5 सर्किल एक्यूरेटली ड्रॉ कर देंगे तो दिखाई पड़ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। बट हियर इट इज वेरी क्लियर that I am going to answer the locus of the center will be an ellipse, है? तो पहले बता दिया, but I am going to solve it. So I am going to erase this part. ये सब सारी चीजें हटाइए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। Okay. I will do the same thing that I have done before. Geometry यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पहली चीज बताई थी, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू सेंटर में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास स्ट्रेट लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। लाइन जॉइनिंग सेंटर टू सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे दे शुड बी ऑन द सेम लाइन, इस सेम लाइन पे चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग द रेडियस ऑफ द C1 टू बी R1, ठीक है। रेडियस ऑफ द येलो कलर सर्किल आई एम टेकिंग टू बी R, उसको R लेंगे, यहाँ पे भी R होगा, ये वाला R लिख दिया, या इधर भी R होगा, और ये टोटल डिस्टेंस जो निकलेगी वो R1 निकलेगी। यहाँ पे पॉइंट अगर हमने यहाँ पे P लिख दिया मान लो, तो C2P जो है वो हमने R1 लिया, बड़े वाले सर्किल के बराबर है, R1 है। वही सिंबल यूज कर रहे हैं जो पुराने वाले, R1 नहीं R2। C2 का लिया तो R2 करके लिख दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कंप्लीट। ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से क्वेश्चन लिख रहे हैं। C2P की वैल्यू C2C प्लस CP करके लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। C2P फिगर के हिसाब से लिख रहा हूं, इज इक्वल टू C2 प्लस C इंटू कैपिटल P, ये क्वेश्चन आएगी। सो आई कैन से C2P इज R1, नहीं R2 है, बार बार मैं इसको R1 ही बोल, हाँ R2 है, दैट इज R2, इसकी वैल्यू R2 आ गई, दैट इज C2 प्लस CP। CP की वैल्यू मेरे पास जो है बड़ी वाली रेडियस है, ठीक है। CP जो है हमारे पास रेडियस ये येलो वाले सर्किल की, ये R है। तो कैपिटल R अननोन है, ये हमको मालूम नहीं, अलग अलग सर्किल बनेंगे, अलग अलग रेडियस आएगा, कैपिटल R इज अननोन, वी नीड टू एलिमिनेट, इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिलहाल एक इक्वेशन बन गई। नाउ फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग CC1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R1, उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कैपिटल R प्लस R1, ये दूसरी क्वेश्चन लिख दी। हालांकि ऑर्डर में नहीं लिखा है, हमें आर वाली टाइम इधर लिखनी चाहिए थी, वो उधर लिखना चाहिए था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इज इजियर, नो नीड टू वरी। नाउ डू फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, तो कैपिटल R2 माइनस C1, तो कैपिटल R कट जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट C2 माइनस ऑफ द R1। अब इसको ट्रांसफर करके रीअरेंज कर दे रहे हैं, तो आई एम गेटिंग ए रिजल्ट दैट इज CC1 दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो वही रिजल्ट आ गया जो पहले आया था। लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज, जस्ट मिनट, जल्दबाजी में लिख दिया, CC1 प्लस CC2, वो लिखना था।
So I am getting a result that is CC1 plus CC2 that is equal to R1 plus R2. ये क्वेश्चन आ गई है. Now I have got the result, but I am writing again that is constant. R1 और R2 हमारे पास सर्किल के रेडियस है, वो कांस्टेंट है. And left side we am writing a statement that is the sum of the distances. That is sum of distances of point C from two fixed points C1 and C2. From two fixed points. From two fixed points C1 and C2. So, sum of the distances from the two fixed points is a constant. That means the locus of the point C is a ellipse. That is the definition of the ellipse. So I can say locus of C is an ellipse. Is an ellipse. Where C1 and C2 will be the foci of ellipse. Where C1 and C2 are foci of ellipse. ठीक है, पहले हाइपरबोला आया था जब एक्सटर्नली टच कर रहा था, जब इंटरनली टच करेगा सर्किल एक दूसरे के अंदर होगा तो इलिप्स हो जाएगा. इसका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. लोकस ऑफ सी एज एन इलिप्स वेयर C1 C2 आर द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड R1 plus R2 इज मेजर एक्सिस. सम ऑफ द डिस्टेंस जो होता है वो 2a के बराबर होता है, a नहीं होता, 2a होता है. दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस. दैट इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस. ठीक है, तो ये मेरे पास थ्योरी का एक पार्ट हो गया, बट इट्स ए गुड कॉन्सेप्ट एंड जस्ट रिमेंबर इट. इसको ध्यान रखिएगा, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो यूज कर लीजिएगा. नाउ बेस्ड ऑन दिस थ्योरम और द मेथड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा दें, बट इट्स गोइंग टू बी लिटिल लेंथी, है ना, कोई बात नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. जस्ट आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखी है. So I am writing the solution. We are given circle S1. इसकी इक्वेशन है x square plus y square is equal to a square. And we are given a circle S2. उसकी इक्वेशन है x square plus y square minus 4ax to be 0. ठीक है, that is equal to 0. इसके बाद पहले वाले सर्किल के सेंटर हमने C1 मान लिए, वो 0 0 है. दूसरे वाले सर्किल के सेंटर C2 है. इट्स कोऑर्डिनेट्स आर माइनस जी माइनस एफ, तो आई एम गोइंग टू गेट 2a, 0. पहले वाले सर्किल की रेडियस R1 आ गई, दैट इज a, और दूसरे वाले सर्किल की रेडियस R2 आ गई, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करा देंगे तो आई एम गोइंग टू गेट इट टू बी 2a. उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला है, दैट इज C1 माइनस C2, दैट इज R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1, जो भी लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड होगा. है ओके. C आई एम टेकिंग द पॉइंट XY, C को XY ले रहे हैं, C से C1 तक का डिस्टेंस जो आएगा, सो आई कैन राइट दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, माइनस C2 लिखेंगे. पॉइंट C से ये XY कोऑर्डिनेट्स है, उससे C2 का डिस्टेंस दैट विल बी x माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में आ गया. एंड दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2 कराएंगे तो a माइनस 2a, यानी कि माइनस a, और मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो a आ जाएगा. वी नीड टू राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड y. हमारे पास जो भी है लोकस निकालना है, तो आई विल ट्रांसफर द सेकंड टर्म ऑन द राइट साइड एंड आई विल डू द स्क्वायर. उससे बेहतर है कि पहले वाली टर्म को उधर ट्रांसफर कर देना, फिर स्क्वायर करा देना, दैट विल बी बेटर. है सो माइनस ऑफ द अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें कैलकुलेशन कम हो वो बेटर रहेगा. x माइनस 2a होल स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख दिया, दैट इज a माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके लिख दिया. नाउ आई एम डूइंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. इस साइड पे जब स्क्वायर करा देंगे और राइट साइड में भी स्क्वायर करा देंगे, जैसे ही स्क्वायर कराएंगे तो बहुत सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी. ये हाइपरबोला का डेरिवेशन या इलिप्स का डेरिवेशन होता है, बेसिकली उसी तरह से होता है, वही करा रहा हूं.
इफ आई डू द स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस वाला प्लस ही बन जाएगा। एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करके रख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, माइनस में 4ax आ जाएगा, एंड प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में हमारे पास जो आएगा एक टर्म आएगी ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और माइनस में 2a टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ गई। ठीक है, तो इससे बहुत सारी टर्म कैंसिल होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमारे पास दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। आई एम शोइंग यू, उसमें से भी a कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, 3a स्क्वायर आएगा, माइनस में 4ax की टर्म है, माइनस में 4ax की टर्म है। ऑन द राइट साइड आई एम गेटिंग माइनस ऑफ द 2a अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। अब a कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये a और यहां से a स्क्वायर का a कैंसिल हो गया। आई एम लेफ्ट विद द इक्वेशन दैट इज 3a माइनस 4x, ऑन द राइट साइड माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू डू द स्क्वायर, अब दोबारा स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर वाली और वाई स्क्वायर वाली अंडर रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। आई एम डूइंग द स्क्वायर नाउ, सो आई एम गेटिंग 9a स्क्वायर एक टर्म आएगी, प्लस में 16x स्क्वायर दूसरी टर्म आएगी, माइनस में आई विल गेट 24ax ऑन द राइट साइड है। आई एम गेटिंग 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये आ गया। नाउ आई एम ट्रांसफरिंग द 4x स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड, आई एम गेटिंग 12x स्क्वायर, ये चीज आ गई। आई एम राइटिंग माइनस ऑफ द 4y स्क्वायर, पहले y स्क्वायर की टर्म लिखेंगे तो माइनस में 4y स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस में 24ax आ गया, एंड वी आर लेफ्ट विद प्लस 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, एंड दैट इज माय आंसर, दैट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज टचिंग बोथ द सर्किल गिवन टू अस एक्सटर्नली। ये चीज आ गई। नाउ आई एम चेकिंग द आंसर, 12x 4y स्क्वायर ये सब आ रहा है, माइनस में 24। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में यहां से 24ax आएगा, और 12a स्क्वायर से उधर जाएगा तो प्लस में 9a स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस में 9a स्क्वायर की टर्म आ रही है, और माइनस में 24x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट इज मैचिंग विद द आंसर है, ये आंसर से मैच कर गया। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सर्किल विच आर एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -2, 1। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, इसको ज्योमेट्री से ही करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। वी आर गिवन ए सर्किल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x टू बी 0। अब इसके सर्किल के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, एंड आई विल ड्रॉ द फिगर है। जस्ट अ मिनट, वी आर गिवन 2 से डिवाइड करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 चाहिए होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, नहीं तो वो हम इक्वेट नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्किट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x, दैट इज इक्वल टू 0। अब सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमारे पास -g -f होते हैं, तो 2g की वैल्यू माइनस में 3/2 है, ये g के लिए 3/4 बन गई, और माइनस g करा देंगे तो 3/4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर इज 3/4, और y कोऑर्डिनेट जो भी है वो 0 आ रहा है, f की वैल्यू 0 है। नाउ आई एम राइटिंग द रेडियस, दैट इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c करा दें तो रेडियस की भी वैल्यू भी मेरे पास जो है वो 3/4 आ रही है। ओके, एंड वी आर गिवन ए पॉइंट -2, 1, इसको पॉइंट a लिख दे रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें -2, 1 दी है। ओके, तो नंबर ऑफ द पॉइंट जो विच आर नियरेस्ट है, दैट एट डिस्टेंस ऑफ द 2 यूनिट्स, 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। जस्ट वेट, आई एम मेकिंग ए फिगर बना दे रहा हूं। सर्किल है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3/4, काफी छोटा है रेडियस, 3/4, 1 से कम है, 3/4, 0, एंड इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑल्सो। ऐसे आ गया, रेडियस भी हमारे पास 3/4 दे रखी है। नाउ वी हैव ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स जो इसने दिए हैं -2, 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो काफी दूर है पॉइंट, यहाँ पे 3/4 है, -2 आ जाएगा, -2, 0 ये पॉइंट आएंगे, तो -2, 1
I will get a point A somewhere here. Its coordinates are -2, 1. अच्छा ठीक है. The number of the points on the circle which are at a distance 2. हाँ, तो पॉइंट ए से 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स का अगर सर्किल खींचे तो आई कैन हैव ए पॉसिबिलिटी हियर. तो रेडियस 2 का सर्किल काटेगा तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे. आई विल गेट 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. रेडियस 2 का सर्किल खींच देंगे तो अगर ये टच कर जाएगा आई विल गेट ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. समटाइम्स ये जो सर्किल है काफी दूर होगा, रेडियस 2 का सर्किल खींच लेंगे वो यहां से निकल जाएगा तो दैट टाइम आई विल हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम 2 पॉइंट आएंगे या एक भी हो सकता है या 0 आ जाएगा है. सो लेट अस डिसाइड एंड वी आर गोइंग टू डू विद द ज्योमेट्री से करने जा रहा हूं. ओके, आई एम कंप्लीटिंग द सर्किल कंप्लीट कर दे रहा हूं. इसका सेंटर ये है, इसको मैंने सी लिख दिया. एक काम कर रहे हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ए सी तक के डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ पे इसकी रेडियस ये आर दे रखी है. एंड दिस पॉइंट आई विल टेक पॉइंट पी, उसको पॉइंट पी ले लेंगे. ठीक है, थोड़ा सा एकदम यहाँ पे टच करेंगे, इसको हटा दे रहा हूं. जस्ट ए मिनट. ये एक्स एक्सिस पे एकदम मीट कर रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा, थोड़ा सा आउट कर दिया. एनीवे, आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द AC स्क्वायर निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, y2 माइनस y1. तो -2 - 3/4, -2 - 3/4. -2 - 3/4 होल स्क्वायर. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर कराएंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा. तो बेसिकली AC स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 4 × 2 8 11 121 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1. So I am going to get 137/16. अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी. AC की वैल्यू अंडर में 137 आएगा और डिवाइडेड बाई 4. ये AC की वैल्यू आ जाएगा, A से C तक की डिस्टेंस. और अगर हमारे पास ये पॉइंट P है, दैट इज ऑन द सर्किल, ये लाइन AC सर्किल को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही, तो उस टाइम से P से C तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर 3/4 है. ठीक है, तो रेडियस वैल्यू 3/4 अप्रोक्सीमेटली 0.75 आ गई. नाउ आई विल कैलकुलेट द डिस्टेंस AC की वैल्यू निकाल लेंगे. अंडर 136 है, 137 है. अगर ये 144 होता तो हमारे पास 12/4 3 आ जाता. अब AC की वैल्यू 3 से कम है. ठीक है, अब 3 से कम है, अब कितनी है एग्जैक्ट तो नहीं मालूम. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ये रख दूं 137 को 121 बना दूंगा तो 11/4 आ जाएगा. तो 11/4 अगर सॉल्व करें तो आई एम गोइंग टू गेट 4 to 8 2.75. ओके, अब ये जो वैल्यू निकलेगी 2.75 से ज्यादा आ जाएगी. 2.8 मान लेते हैं या जो भी मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग इट इज 2.8 या जो भी है ऐसे करके लिख दिया. बल्कि और ज्यादा ही आनी चाहिए, बट एनीवे द वैल्यू ऑफ द AC, A से C तक का डिस्टेंस मेरे पास 2.8, ये 0.75 है. सो आई कैन राइट AP. P इज द नियरेस्ट पॉइंट, जो P पॉइंट होगा सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा. है, सो द वैल्यू ऑफ द AP आई कैन राइट दैट इज AC माइनस द रेडियस PC. जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू 2.8 आ गई और PC की वैल्यू मेरे पास 0.75 है. जब इसको सॉल्व करेंगे देन आई एम गोइंग टू गेट 2.15, 2.05. आई एम गेटिंग 2.05. इसकी वैल्यू 2.05 आएगी, बल्कि और ज्यादा ही आएगी. एग्जैक्ट निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ रहा है. ठीक है, 121 से तो काफी ज्यादा आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2.9 आएगा अगर कैलकुलेट करेंगे तो. बट एनीवे AP की वैल्यू 2.05 आएगी. तो नियरेस्ट पॉइंट जो भी निकलेगा सर्किल के ऊपर वो डिस्टेंस 2.05 के ऊपर होगा. तो डिस्टेंस 2 के ऊपर कोई पॉइंट नहीं आने वाला है. दैट्स ऑल. है, सो देयर इज नो पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2. तो जो भी सर्किल बनाएंगे 2 रेडियस का वो यहां से निकल जाएगा. इस तरह से फिगर बन जाएगी. दैट आई एम सेइंग. ओके, तो नो पॉइंट एट ए डिस्टेंस 2 on the circle. No point at distance 2. At distance 2 units on the circle from the point A. ये चीज आ गई.
अब वैसे भी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। फिगर मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री से करा दिया। ये ओरिजिन है 0 0, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 आ गई, ये हाइट 1 आ गई। अब हम जब यूज करेंगे, जो भी करेंगे, मान लीजिए ए से पी को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस मेरे पास जो भी निकलेगी वो 2 से बड़ी आएगी, 2 से बड़ी आएगी है। थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज जो होगी वो हमारे पास जो भी साइड है उससे बड़ी आनी है, ये 2 से बड़ी आ जाएगी। अब सर्किल मेरे पास राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं है, तो उसके टाइम पे क्या होगा, तो ये पॉइंट जो है शिफ्ट होकर राइट में बढ़ेगा। तो एपी की जो वैल्यू निकल के आएगी, एपी की जो वैल्यू आएगी हर हालत से 2 से बड़ी आएगी, 2 से छोटी नहीं आ सकती है। दैट आई एम सेइंग। ये साइड है, इस साइड में सर्किल है, सर्किल इस साइड में होता तो हमारे पास एपी की डिस्टेंस कम हो जाती है। सर्किल ऑन द राइट साइड, तो ये हमारा डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो एपी इज ग्रेटर देन 2, ये लॉजिकली हम कर सकते हैं, फिगर ड्रॉ करके वहां से भी रिजल्ट आ सकता है। दैट आई एम सेइंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If from the origin a chord is drawn to the circle this, then the locus of the midpoint of the chords had the equation. अब एक मेरे पास सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, आई एम जस्ट राइटिंग द प्रॉब्लम। सर्किल की इक्वेशन जो भी है मेरे पास, आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x टू बी 0। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट से रेडियस में लिख सकता हूं, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। आई हैव बोथ द ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ज्योमेट्री से भी हो जाएगा और एक फॉर्मूले से भी हो जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आई एम गेटिंग माइनस जी माइनस एफ, दैट इज 1,0, एंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज ऑल्सो 1। बट एनीवे लेट मी ड्रॉ द सर्किल। एक सर्किल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसकी इक्वेशन एस इक्वल टू 0 दे रखी है। If from the origin a chord is drawn to this, then the locus of the midpoint of the chords. एक पॉइंट है, ओरिजिन है, ओरिजिन से आई कैन ड्रॉ ए कॉर्ड। ये पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। आई हैव ओरिजिन समवेयर हियर, ओ लिख दिया, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स, ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे एम आएगा या पी लिख लीजिए, जिसका लोकस निकालना, उसको मैं x1 y1 लेता हूं। एंड आई नीड टू ब्रिंग ए रिलेशन, आई नीड टू फॉर्म ए रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1, ये करना है। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, दो चीजों से हो जाएगा। सर्किल का सेंटर मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 है, और पी मिड पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन, ये सेंटर सी आ गया। सीपी का स्लोप निकल जाएगा और उसके बाद पीओ का स्लोप निकल जाएगा। m1 m2 -1 करा देंगे, आई विल गेट द रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1। वो x1 y1 में रिलेशन आ जाएगा, एंड दैट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट पी। ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आई कैन चेंज इट, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला। ये तरीका मैंने पहले बता रखा है, करा दिया है, वो दैट इज शॉर्ट आल्सो, बट आई नीड टू शो यू द एप्लीकेशन ऑफ द मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू, t इक्वल टू s1। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, equation of the chord whose midpoint is x1 y1, whose midpoint is x1 y1, whose midpoint is x1 comma y1, we have a formula that I am writing है। वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, t इक्वल टू s1, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे t कुछ नहीं होता, t इज ए सिंबल। हाँ, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, दैट आई एम रिप्लेसिंग, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह प्लस में वाई y1, माइनस में 2x की जगह x प्लस x1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू s1। s1 क्या आएगा, सर्किल के इक्वेशन में पॉइंट x1 y1 जो मिड पॉइंट है वो रख देंगे। देन आई एम गोइंग टू गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, वन टर्म, माइनस ऑफ द 2x1 अनदर टर्म। ओके, उसके बाद we need to find a relation between x1 y1 निकालना है, x1 y1 रिलेशन चाहिए। we are having x and y term, I don't want this है। लेकिन एक चीज दिखाई पड़ती है, कॉर्ड हम जब खींचेंगे तो एक चीज ए बी, एक कॉर्ड ए बी आ सकती है, एक कॉर्ड ए बी आ सकती है, एक कॉर्ड ए बी आ सकती है, सबके मिड पॉइंट्स अलग लगाएंगे तो लोकस हमारे पास ऐसे निकल जाएगा। बट वेदर दिस कॉर्ड, दैट कॉर्ड और दिस कॉर्ड, ऑल आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। तो कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 वॉट एवर द कॉर्ड वी ड्रॉ है। तो आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई the equation of the chord with, ठीक है, okay, I am writing a statement, since
the chord is passing through the point x1, y1 is 0.00. Since chord is passing through origin or 0, 0. So 0 will satisfy the equation of the chord. वो लिख रहा हूं. तो x की जगह 0 रख देंगे तो पहला टर्म 0 बन जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे दूसरा टर्म 0 बन जाएगा. यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस में x1 आ जाएगा. और राइट साइड में आई एम गोइंग टू गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1. Now I have got a relation between x1 y1. हाँ, इसको ऑर्डर में लिख दे रहा हूं, then it will become a locus. So I have got a relation that x1 square plus y1 square minus of the x1 is equal to 0. Or I can say the locus of the point P x1 y1, which is the midpoint. So locus is x square plus y square minus x, that is equal to 0. ठीक है? And this is matching with the answer. Answer के साथ ये मैच कर जाएगा. हाँ? That I am saying. So, dear, we are stopping now. अब रुकते हैं. हाँ? अच्छा खासा टाइम हो चुका है. We'll continue with few more problems in the next class. तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ी सी अपर लेवल हो सकती हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है. आफ्टर दैट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एडवांस लेवल के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएंगे. दे विल बी वेरी टफ. एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग आल्सो, वी विल डू सम बेसिक एंड द गुड प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग टू हेल्प अस फॉर एडवांस. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, द मेथड, द ट्रिक्स, जो भी चीज कहेंगे, एंड इट्स क्लियर टू यू. सो आई एम स्टॉपिंग नाउ. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय. गुड बाय. थैंक्स.